السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے یوٹیوب چینل شرعی اسلامک دنیا 92 میں آپ سامعین کا خیر و مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان آباد ہیں سب کی ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین 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 یا رب العالمین۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج کا سبق ہے نماز کی سنتیں۔ یہ شروع کرتے ہیں، یہ لیسن نمبر 29 ہے، لیسن نمبر 29 ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز کی سنتیں بیان فرمائیں۔ جواب: نماز کی سنتیں یہ ہیں: تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ دیکھیے تکبیر تحریمہ جو فرض ہے، جو نیت کرنے کے بعد جو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جو ہے کہ باندھتے ہیں، تو تحریمہ اللہ اکبر کہنا مطلب جو ہے کہ فرض ہے اور واجب بھی ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے، سمجھ گئے؟ تو کیا فرما رہے ہیں؟ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، یعنی اللہ اکبر کہتے وقت سر نہیں جھکانا ہے، سیدھا رکھنا ہے قبلہ کی طرف، تب جو ہے کہ اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا سنت ہے، اور ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ کی رخ ہونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، اسی طرح تکبیر قنوت، یعنی تکبیر قنوت جو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا، تکبیرات عیدین یعنی عید، ایک عید، عیدین یعنی دونوں عید، عید اور بقرعید، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ عورت کو صرف مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام کا اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ اور سلام بلند آواز سے کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام کا اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ اور سلام بلند آواز سے کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بعد تکبیر ہاتھ لٹکائے بغیر فوراً باندھ لینا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جب باندھتے ہیں تو لٹکانا نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو جو ہے کہ سیدھا باندھ لینا ہے، لٹکانا نہیں ہے، کیا ہے؟ سنت ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور آمین کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھنا اور آمین کہنا اور ان سب کا آہستہ ہونا سنت ہے۔ تو ان سب کا آہستہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ثنا پڑھنا، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا، یعنی پہلے ثنا پڑھ لیے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیے، پھر بسم اللہ پڑھ لیے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر ایک کے بعد، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو 3 بار سبحان ربی العظیم جو پڑھتے ہیں سنت ہے، ایک بار بھی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کے ثواب میں کمی ہوگی، کیونکہ سنت ہے، یہ سنت چھوٹ جاتی ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ اگر واجب چھوٹے گی تب سجدہ سہو کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر فرض چھوٹ گئی تب جو ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن واجب اگر چھوٹ جائے تو جو ہے کہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن سنت اگر چھوٹ جائے تو جو ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی، خلاف سنت نماز ادا ہوگی۔ تو رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ عورتوں کو، اب دیکھو عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، عورتوں کو گھٹنے پر ہاتھ رکھنا، عورتوں کو گھٹنے پر ہاتھ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ مرد کو گھٹنوں کو پکڑنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور عورتوں کو صرف جو ہے کہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور انگلیاں کشادہ نہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو مرد حضرات کو جو ہے کہ انگلیاں کھلی رکھنا ہے اور عورتوں کو انگلیاں کھلی نہیں رکھنا ہے، کیا ہے یہ؟ سنت ہے۔ تو عورتوں کو گھٹنے تک ہاتھ پہنچا دینا یعنی گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا سنت ہے، اور انگلیاں جو ہے کہ کشادہ نہ رکھنا یعنی کھلی ہوئی نہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے۔ حالت رکوع میں، اب یہ مرد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ حالت رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھنا، حالت رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ رکوع سے اٹھنے پر ہاتھ لٹکا ہوا چھوڑنا سنت ہے۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام کو رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور منفرد کو دونوں کہنا سنت ہے۔
अगर इमाम है तो समी अल्लाहु लिमन हम्द कहेंगे, तो पीछे वाले मुक्तदी क्या कहेंगे, रब्बना लकल हम्द या रब्बना व लकल हम्द कहेंगे, ठीक है। अगर मुनफरिद है यानी अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो दोनों कहना है, समी अल्लाहु लिमन हमिद भी कहना है और रब्बना लकल हम्द भी कहना है, ठीक है। सजदा के लिए और सजदा से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना, सजदा के लिए और सजदा से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना क्या है, सुन्नत है। सजदा में कम अज कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहना क्या है, सुन्नत है। एक बार भी कहेंगे तो नमाज हो जाएगी, लेकिन 3 बार कहना क्या है, मुस्तहब है, सुन्नत है। अगर एक ही बार कहेंगे तो खिलाफ सुन्नत नमाज अदा होगी। तो ऐसा ना करें, सही से नमाज पढ़े, ठहर ठहर के नमाज पढ़ें और खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ा करें, ठीक है। और इस तरह नमाज पढ़ा करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, कि आपको लज्जत मिले नमाज में, ठीक है। ये नहीं जल्दी जल्दी नहीं, ये जो है कि देखिए आप जो है कि काम करते हैं अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, आप जो है कि कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ये सारी चीज़ जो है कि फैमिली के लिए है। लेकिन खुद के लिए क्या है, आप जो है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र अस्कार करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, तो ये सब आपके लिए, तो आप अपने लिए भी कुछ करें, ठीक है। सिर्फ जो है कि दुनिया ही कमाने के चक्कर में ना लगे, ठीक है। सजदा में कम अज कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहना सुन्नत है। सजदा करने के लिए पहले घुटना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी जमीन पर रखना, यानी रुकू करने के बाद जब सजदा करेंगे तो सजदा की तरतीब क्या बता रहे हैं, सुन्नत का तरीका क्या बता रहे हैं। सजदा करने के लिए पहले घुटना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी जमीन पर रखे सजदा में जाने के वक्त, ठीक है। और सजदा से उठने के लिए पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटना जमीन से उठाना, ये क्या है, सुन्नत है। तो इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। सजदा करने के लिए क्या कह रहे हैं, पहले घुटना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी जमीन पर रखना। और सजदे से उठने के लिए क्या कह रहे हैं, पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटना जमीन से उठाना, क्या है, सुन्नत है। सजदा में बाजू करवटों से और पेट रानों से अलग होना, यानी औरतों की तरह सिमट कर सजदा नहीं करना है, ठीक है। और कुत्ते की तरह कलाइयां जमीन पर न बिछाना, कुत्ते की तरह कलाइयां जमीन पर न बिछाना, क्या है, सुन्नत है। औरत का बाजू करवटों से, पेट रानों से, रान पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला देना, ये औरतों के लिए है, क्या है। औरत क्या करेगी, सिमट के सजदा करेगी। औरत का क्या है, बाजू करवटों से, पेट रानों से, रान पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला देना, यह है सजदा करने का तरीका औरतों का। दोनों सजदों के दरमियान मिसले तशहुद के बैठना, दोनों सजदों के दरमियान मिसले तशहुद के बैठना, यानी जो अत्तहियात पढ़ने के लिए आप बैठते हैं उस तरह जो है कि दोनों सजदे के दरमियान, यानी एक सजदा कर लिए फिर जो है कि बैठते हैं जो, तो तशहुद में जैसे जैसे बैठते हैं उस तरह बैठना है, फिर उसके बाद जो है कि दूसरा सजदा करना है। तो दोनों सजदों के दरमियान यानी बीच में मिसले तशहुद के बैठना। और हाथों को रानों पर रखना, क्या है, सुन्नत है। सजदों में हाथों की उंगलियों का किबला रू होना, सजदों में हाथों की उंगलियों का किबला रू होना और मिली हुई होना, क्या है, सुन्नत है। और पांव की 10 उंगलियों के पेट जमीन पर लगना, यानी उंगलियों का किबला की तरफ मुड़ना, क्या है, सुन्नत है। देखिए जो है कि 3 अगर नहीं मुड़ी, मैं बताया था पिछली वीडियो में, अगर 3 उंगलियां जो है कि आपकी पैर की 3 उंगलियां अगर किबला की तरफ नहीं मुड़ी, यानी जो है कि उंगलियों का पेट जमीन से लगे और उंगलियों का रुख किबला की तरफ हो जाए, अगर 3 ना लग पाए तब जो है कि नमाज वाजिबुल अदा हो जाएगी, क्योंकि वाजिब छूट गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10, यानी दोनों पांव की 5-5 उंगलियों का पेट जमीन से लग जाए और 5 उंगलियों का जो है कि किबला की रुख उंगलियां हो जाए, ये क्या है, सुन्नत है। दूसरी रकात के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर खड़ा होना, दूसरी रकात के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर उठना, खड़ा होना, क्या है, सुन्नत है। कायदा में बायां पांव बिछाकर दोनों सुरीन उस पर रख कर बैठना, कायदा तो आपको मालूम ही है, जो अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं रकातें पूरी करने के बाद, तो उसको कायदा बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कायदा में बायां पांव बिछाकर दोनों सुरीन उस पर रख कर बैठना, क्या है, सुन्नत है। दाहिना कदम खड़ा रखना सुन्नत है। और दाहिने कदम की उंगलियां किबला रुख करना, यानी सजदे में जब आप जाएंगे तो दोनों पांव की उंगलियां किबला की रुख होना चाहिए। लेकिन जब जो है कि तशहुद में बैठेंगे, कायदा में जब बैठेंगे, तो जो है कि एक पैर जो है कि खड़ा रहेगा, दाहिने पैर की उंगलियां, 5 उंगलियां वो जो है कि किबला की तरफ मुड़ी हो, यानी उंगलियों का पेट जमीन से लगा हो और उंगलियां किबला की रुख हो। दाहिना कदम खड़ा रखना और दाहिने कदम की उंगलियां किबला रुख करना, क्या है, सुन्नत है। औरत को दोनों पांव दाहिने जानिब निकाल कर बाएं सुरीन पर बैठना, औरत के लिए क्या है, ये सुन्नत है। क्या सुन्नत है, औरत को दोनों पांव दाहिनी जानिब निकाल कर, औरत को
दोनों पांव दाहिनी जानिब निकाल कर बाएं सुरीन पर बैठना सुन्नत है। दाहिना हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बाएं रान पर रखना क्या है? सुन्नत है। दाहिना हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बाएं रान पर रखना सुन्नत है। और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ देना। कायदा में तशहुद पढ़ने के वक्त उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ देना क्या है? सुन्नत है। शहादत पर इशारा करना, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो आप जो है कि शहादत वाली उंगली उठाते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इशारा करके भी बताते हैं कि अल्लाह एक है, तो ये जो है कि इशारा करना क्या है? ये सुन्नत है। शहादत पर इशारा करना सुन्नत है। कायदा आखिरा में तशहुद के बाद, कायदा आखिरा यानी जो है कि पूरी नमाज आप मुकम्मल कर लिए, 2 रकात वाली नमाज है तो आखिर में जो बैठेंगे वो कायदा आखिरा है। और अगर जो है कि 4 रकात वाली नमाज है तो आखिर में जो बैठेंगे सलाम फेरने के लिए वो कायदा आखिरा है। ठीक है। और कायदा उला कौन सी है? जो 4 रकात के बीच में, मतलब 2 रकात पूरी करके जो बैठते हैं वो कायदा उला है। और जो है कि जब मुकम्मल कर लेते हैं पूरी रकातें और जो बैठते हैं वो क्या है? कायदा आखिरा है। तो ठीक है। तो कायदा आखिरा में तशहुद के बाद यानी अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ जो दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं इसको पढ़ना क्या है? सुन्नत है। और उसके बाद जो दुआ मासूरा पढ़ते हैं वो भी दुआ पढ़ना क्या है? सुन्नत है। रेफरेंस दुर्र मुख्तार बहार शरीयत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी गलती गुस्ताखी बेअदबियाँ खामियाँ हुई हों अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में जो ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको जो है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्ता नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। और जितने भी सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान आबाद हैं सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बिरादरान अहले सुन्नत, ज़रा सा भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो और जो है कि आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो मैं गुजारिश करता हूँ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझ के शेयर करें। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।